Somnarayan to everyone. Welcome back to our e-learning class of Gokuldham. In our previous video, we have learned about Lok Sabha, Rajya Sabha and the Speaker. We have also learned about the qualification for the membership of the Lok Sabha, Rajya Sabha and the Speaker. So today we are going to learn here about the legislature at the state level. So here given first number, Legislative Assembly. Each state has a legislature and it is called Legislative Assembly. Legislative Assembly is the lower house. That means each state has a legislature and this legislature is known as the Legislative Assembly. Legislative Assembly is the lower house. Next, Legislative Council. The other house of the legislature is called the Legislative Council. Bihar, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamil Nadu etc. states have two houses. यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा भी कोई स्टेट ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. तो वो कौन से स्टेट है तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं कि जैसे कि बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और इसके अलावा भी कुछ स्टेट है कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों वहाँ पे काम करते हैं. There the legislative council is the upper house and the legislative assembly is the lower house. Gujarat state does not have a legislative council. कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो एक अपर हाउस माना जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है तो वो एक लोअर हाउस है. मगर हमारे गुजरात में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. Various states have different numbers of members of the Legislative Assembly. As per the provision in the Constitution, the minimum number of members of Legislative Assembly is 60 and the maximum number of members is 500. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है तो उनकी नंबर्स कितने होने चाहिए तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है कि मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्सिमम जो मेंबर्स है तो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. The number of members of Gujarat Legislative Assembly is presently 182. कि अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो गुजरात स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो नंबर्स है तो वो 182 है. Now we will discuss about the qualification for membership of the state legislature. Any person who is a citizen of India and is of 25 years or more and is not in a state of unsound mind, insolvent or criminal can contest the elections of legislative assembly. तो सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो पर्सन एक इंडियन होना चाहिए, उनकी जो एज है तो वो 25 ईयर्स या उससे अधिक होनी चाहिए और वो एक अनसाउंड माइंड और एक क्रिमिनल नहीं होना चाहिए. तो ही वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है तो उसमें वो कंटेस्ट या पार्टिसिपेट तो वो कर सकता है. Now here we will discuss about the time period of the legislative assembly. The Legislative Assembly is not a permanent house. Its time period is of 5 years. After the given period, the Legislative Assembly is dissolved. यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो एक परमानेंट हाउस नहीं है, उनका जो टाइम पीरियड है तो 5 इयर्स का है और लेजिस्लेटिव असेंबली उनका टाइम पीरियड ओवर होने के बाद उसको डिसॉल्व किया जाता है. In unusual situations wherein the government cannot function as per constitutional provision or if government cannot be formed, then the governor can send a recommendation to the President of India to dissolve the government. So friend, in unusual situations as like government cannot function as per our constitutional provision or government cannot form, so at that time governor can send their recommendation to the president for the president's will to dissolve this legislative assembly. The president then dissolves the legislative assembly and imposes president's rule in that state. During that time period, the governor administers the state. यानी कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उस वक्त उस स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो वो गवर्नर करते हैं.
For the purpose of smooth functioning of the Legislative Assembly, Speaker and Deputy Speaker are elected by the members from amongst themselves. यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ पे स्मूथ फंक्शन हो सके ऐसे पर्पज के साथ जो मेंबर्स होते हैं तो उसमें से ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है और उसके बाद जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है तो वो सिलेक्ट होते हैं. नेक्स्ट, the members of the Legislative Council are elected from among the institutions of local self-governors, registered graduates, teachers of secondary and higher secondary by electorates. यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा भी जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं तो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं तो वो जो लोकल सेल्फ गवर्नर्स के इंस्टीट्यूशंस के जो पर्सन है जो ग्रेजुएट से टीचर्स सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के तो उसको इलेक्टोरेट्स के जरिए उसका इलेक्शन होता है. To be eligible as a member of the Legislative Council, the candidate should be of 30 years or more and must be a citizen of India. The Legislative Council is a permanent house. यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो परमानेंट हाउस नहीं है जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो एक परमानेंट हाउस है. Like the Rajya Sabha, each of its members gets elected for a term of 6 years. कि राज्यसभा में जैसे जो मेंबर्स की जो टर्म है तो वो 6 इयर्स की होती है तो वैसे भी यहाँ पे 6 इयर्स की ही टर्म होती है. Its 2/3 members retire every 2 years. A state has to decide whether to keep a legislative council or not. कि जो भी स्टेट है तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसके वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल रखनी है या नहीं रखनी. तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है. Gujarat does not have a legislative council. Like the Lok Sabha, the legislative assembly has more power. So in our Gujarat there is not legislative council. जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसका वर्क जो है तो लोकसभा के जैसा ही है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को ज़्यादा पावर मिलता है. Ordinary as well as money bills can be presented in it. After the bills pass through various steps, they are sent to the governor for its assent. कि जैसे ऑर्डिनरी बिल जो है तो वैसे ही मनी बिल को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है और जो भी बिल वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बाद उसकी असेंट के लिए यानी कि उसकी परमिशन के लिए उनकी सिग्नेचर के लिए जो गवर्नर जो स्टेट के होते हैं तो उनकी परमिशन के लिए सिग्नेचर के लिए वहाँ पे भेजा जाता है. आफ्टर द गवर्नर साइंस द बिल इट बिकम्स एन एक्ट. यानी कि जो गवर्नर है तो वो बिल के ऊपर साइन करते हैं उसके बाद ही वो एक एक्ट बनता है. जैसे कि प्रेसिडेंट जो भी बिल के ऊपर साइन करते हैं उसके बाद वो एक्ट बनता है मगर वो जो एक्ट है वो पूरी कंट्री के लिए बनता है जबकि यहाँ पे जो गवर्नर साइन करते हैं और जो उसको एक एक्ट बनाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद के स्टेट के लिए ही वो बनता है. Now friend, we will go ahead and we will see here the most important organ of the government which is here given, executive. The most efficient, effective and central organ of the government is the executive. Union executive means a central government. यानी कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है तो उसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो उसको हम यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं. Political executive comprising administration of the Prime Minister and Cabinet of Ministers, President, Vice President and bureaucrats. यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और साथ में जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं. Political and administrative executive officers and employees are in the direct contact of the people. The people are influenced by their work. So, political and administrative executive officers and employees are direct contact with the people. यानी कि जो political और administrative executive officers है तो वो directly जो भी people है तो उसके contact में होते हैं और उसके कारण ही वो उनसे influence भी होते हैं. The executive implements the laws framed by the legislation. तो यहाँ पे हमें शॉर्ट में ये दिखाया गया है कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है. तो जो लेजिस्लेचर है
तो जो भी उन्होंने जो लॉ को फ्रेम किया है तो उसका जो इम्प्लीमेंट करवाना है तो वो एग्जीक्यूटिव का काम है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कैरीड आउट द वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी, programs, and planning done by the government, keeping in view the aspiration and expectation of the people। कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, तो उनका काम ये है कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनवाई है, जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं और जो भी प्लानिंग की है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, कि जिसके कारण जो भी कॉमन सिविलाइजेशन है, कॉमन सिविलियन है, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो एस्पिरेशन है तो वो फुलफिल हो, उनके एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फेक्शन मिले। तो ऐसा जो काम करना है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करते हैं। The political executive changes every 5 years or if the power is given it, whereas the administrative executive is formed by permanently appointed bureaucrats and hence it is permanent। कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो वो एवरी 5 इयर्स के बाद यानी कि हर एक 5 इयर्स के बाद वो चेंज हो जाते हैं, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं तो वो परमानेंटली होते हैं, कि जो एक ब्यूरोक्रेट्स के जरिए उसको अपॉइंट किया जाता है और वो एक परमानेंट। However, the retirement age of the administrative bureaucrats is different in different states. Before their retirement, if they misbehave or show lack of efficiency to work, they can be removed from their posts the following prescribed inquiry procedure। कि उनकी हर एक स्टेट में जो रिटायरमेंट की एज है तो वो हर एक स्टेट में अलग अलग है, मगर रिटायरमेंट एज से पहले भी उनको मिसबिहेव के कारण या फिर उनकी काम के प्रति एफिशिएंसी न होने के कारण तो उसको भी जो रिमूव किया जाता है, मगर उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो प्रोसीजर दी गई है, कुछ जो प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं तो उसके मुताबिक ही उनको मिसबिहेव के कारण उसको रिटायर या फिर उसको सस्पेंड किया जा सकता है। The political executives are the members belonging to any political party। Their main qualification is to get elected based on their individual honesty to the party, public choice, and public opinion, whereas administrative executive requires educational qualification, quality, experience, as well as passing competitive examination to be appointed permanently। यानी कि जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता है तो उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो उसकी जो पार्टी के प्रति उनकी जो हॉनेस्टी कितनी है, जो पब्लिक की चॉइस वो कैसी है, या फिर पब्लिक का ओपिनियन कैसा है उस रिप्रेजेंटेटिव के प्रति, तो उसके ऊपर वो निर्भर करता है कि कौन सा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वहाँ पे होगा। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की बात आती है तो वहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मायने रखता है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वहाँ पे देखा जाता है, उनकी क्वालिटी, उनकी एक्सपीरियंस और साथ में उन्होंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्मेंस दिया है तो उसके आधार पे उसका अपॉइंटमेंट होता है। द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इज नोन एज द सिविल सर्विस। At the center, the political executive consists of president, vice president, prime minister, and cabinet of ministers as per the constitution। कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको इंक्लूड किया जाता है। Now here we will see about President. President is the constitutional head of India. All the executive powers of the federal government is given to the President by the Constitution. So friend, President is the constitutional head of our country and all the executive powers of federal government is given to the President by the Constitution। यानी कि जो एक हमारी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है तो वो प्रेसिडेंट है, और जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए गए हैं तो वो प्रेसिडेंट को दिए गए हैं और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उनको मिलते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई ये दे रहा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया जो है तो वो अलग अलग स्टेट से बनी हुई एक यूनियन है, तो उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट।
He is the head of the nation and the first citizen of the Republic of India. कि हमारी कंट्री के जो हेड है तो वो प्रेसिडेंट होते हैं और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट सिटीजन जिसको हम कहते हैं तो वो फर्स्ट सिटीजन हमारे प्रेसिडेंट होते हैं. Qualification: a presidential candidate should be a citizen of India and should be 35 years of age or above. कि जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है तो वो एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और साथ में उनकी जो एज है तो 35 इयर्स या उससे अधिक होनी चाहिए. He should not be a salaried employee of the government or hold any office of profit. He should not be a member of any of the houses of the parliament or state legislative assembly. कि वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउसेस में से वो एक मेंबर नहीं होने चाहिए, साथ में किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर नहीं होने चाहिए. The presidential election is indirectly carried out by the members of both the houses of the parliament and the members elected to the state legislative assembly. कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है तो वो एक इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है कि जहाँ पे जो वोटिंग कौन कर सकता है तो उसमें जो पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं तो वो वोटिंग कर सकते हैं और साथ में जो भी स्टेट है तो वो स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं तो वही सिर्फ उसमें वोटिंग कर सकते हैं. यानी कि जो कॉमन पीपल है तो कॉमन पीपल का उसको वोटिंग करने का जो राइट है वो नहीं मिलता है. A president is elected for a term of 5 years and he can contest the election after the completion of his term. कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है तो वो हर एक 5 साल के बाद होता है. यानी कि एक तरह से प्रेसिडेंट का जो रूल है तो वो 5 साल तक वो चलता है. When the president is in power, neither criminal case can be framed against him, nor an order of arrest or imprisonment can be issued. यानी कि जो भी पर्सन प्रेसिडेंट है तो उस वक्त तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का जो क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस हम उसके अगेंस्ट में फ्रेम नहीं कर सकते हैं या फिर उनके खिलाफ जो अरेस्ट का जो ऑर्डर है तो वो भी हम नहीं दे सकते हैं. यानी कि एक तरह से जो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के खिलाफ हम क्रिमिनल केस या फिर उसको अरेस्ट करने का जो चार्जेस है तो वो भी हम नहीं लगा सकते. So now we will see here the functions and powers of the president. He appoints the leader of the party who has gained majority in the general election as the prime minister. Then with the consultation of the prime minister, he appoints the other ministers of the cabinet. So friend, president can appoint the leader of the party who gain majority in the general election as the prime minister. यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में जो भी पार्टी ने मेजॉरिटी अचीव की है तो उसमें से ही किसी एक पर्सन को वो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको अपॉइंट करते हैं. देन विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट. यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कंसल्टेशन करने के बाद उनके साथ डिस्कशन के बाद जो प्रेसिडेंट है तो वो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे तो मिनिस्टर्स को भी वो अपॉइंट करते हैं. He administers the oath and distributes the portfolios to the ministers. तो उनका काम क्या है तो जो भी ये मिनिस्टर्स है प्राइम मिनिस्टर है तो उनको ओथ जो है तो वो ओथ लेने यानी शपथ लेने का जो काम है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रेसिडेंट करते हैं और साथ में जो भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है तो उनका जो अलग अलग पोर्टफोलियो है यानी कि उनको क्या काम करना है तो वो भी प्रेसिडेंट उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. As long as the cabinet enjoys the support of the majority members of Lok Sabha, the president cannot dissolve the cabinet. यानी कि अगर कैबिनेट जो है तो वो कैबिनेट को पूरा जो सपोर्ट मिलता है मेजोरिटी का लोकसभा में तो प्रेसिडेंट भी उनको डिसॉल्व नहीं कर सकते. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री. यानी कि हमारी जो 3 डिफेंस फोर्सेस है तो उनके जो हेड है तो वो प्रेसिडेंट होते हैं. जैसे कि जो नेवी है फिर एयरफोर्स है जो आर्मी है तो उनके जो लीडर्स है उनके जो मेन हेड है तो वो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट है.
The President has the power to declare war, cease the war, or conclude treaties with other countries. He appoints the judges of the Supreme Court and High Courts, governors of the state, Attorney General, Comptroller and Auditor General कि वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस थे तो उनको भी वो अपॉइंट करते हैं। साथ में हर एक स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। जो अटॉर्नी जनरल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है तो उसका जो सिलेक्शन होता है तो वो भी अपॉइंट जो करते हैं तो प्रेसिडेंट करते हैं। He appoints the head of the defense forces. He appoints the chairman of the Union Public Service Commission and ambassadors to various nations. यानी कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उनके जो चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट के जरिए होती है। और साथ में अलग अलग नेशंस के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए इंडिया के जो एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। Thus, vast authorized executive and administrative powers are vested in the President. He can grant pardon or reduce the sentence of any convicted person, or can postpone its implementation, or can change the nature of the punishment. यानी कि जो भी पर्सन कन्विक्टेड पर्सन है या फिर जो भी क्रिमिनल है तो उनकी जो पनिशमेंट है तो वो पनिशमेंट को पार्डन करने की यानी कि उनको माफ़ करने की जो अथॉरिटी है तो वो प्रेसिडेंट के पास है। और साथ में उनकी जो सेंटेंस की जो पनिशमेंट है तो उसको भी जो माफ़ करने की जो अथॉरिटी है तो वो प्रेसिडेंट के पास होती है। साथ में उनको जो भी पनिशमेंट मिली है तो उसका पोस्टपोन करने का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पोस्टपोन करने का जो अथॉरिटी है या फिर जो पनिशमेंट का जो नेचर चेंज करना है तो वो प्रेसिडेंट ही सिर्फ कर सकते हैं। He summons the sessions of both the houses of parliament and prorogues them. He can even dissolve the Lok Sabha कि वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को समन भेज सकते हैं सेशन के लिए और साथ में लोकसभा को भी वो डिसॉल्व कर सकते हैं। If the President is satisfied that the security of India or any part of its territory is threatened by a war or external aggression or armed rebellion, he can declare a state of emergency for the whole of India or any of its part. यानी कि अगर कुछ ऐसी भी सिचुएशन खड़ी होती है कि जिस वक्त जो क्राइसिस है वो क्राइसिस बढ़ गए हैं या फिर जो सिक्योरिटी का जब प्रॉब्लम आता है तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट उस वक्त वहाँ पे जो इमरजेंसी है तो वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो पूरी कंट्री में भी इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर इंडिया के किसी पार्ट में कि जहाँ पे ऐसी रिबेलियन एक्टिविटी होती है या फिर कोई कुछ वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट हुई है तो उस वक्त वहाँ पे वो जो इमरजेंसी है तो वो भी वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी है तो वो भी प्रेसिडेंट के पास है। The declaration of emergency cannot be challenged in court. Based on report of the governor, the president can declare constitutional emergency in that state. यानी कि गवर्नर के रिपोर्ट के आधार पे जो भी स्टेट है तो वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रही है या फिर कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन खड़ी हुई है तो उस वक्त जो गवर्नर वहाँ के होते हैं तो वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजते हैं तो उसके बाद उसके साथ उनके साथ डिस्कशन करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी उसी स्टेट में वो इम्पोज कर सकते हैं। He can establish president rule by dissolving the state cabinet ministry. In case of financial emergency, the president can reduce salaries of all government officials, including judges of the Supreme Court and the High Court. यानी कि जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उस वक्त प्रेसिडेंट जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी इंक्लूड हो जाते हैं तो ये सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो सैलरी है तो उस सैलरी को भी वो रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से पूरी तरह से उनको एक जो पावर्स जो उनको मिले हैं। Though the president has vast executive and administrative powers and though all the administration can be considered in the hands of the president only and done in his name only, in reality the prime minister and the council of ministers enjoy these powers.
यानी कि एक तरह से जो प्रेसिडेंट है तो उनको ये सब एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनको मिले हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये सब जो पावर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है। मगर उनका ये पावर्स को जो एंजॉयमेंट करने की या फिर पावर्स को एंजॉय करने की जो सत्ता जो मिली है, अथॉरिटी जो मिली है, तो वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये मिले है। यानी कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स है तो वो एंजॉय सिर्फ प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर सकते हैं। So friend, we have seen here the functions and powers of the president.